بہاول نگر میں افسوسناک واقعہ، شادی سے انکار کرنا جرم بن گیا۔ چچا زاد بھائی نے طالبہ کی زندگی اجیرن کر دی۔ نوجوان نے اے آئی ٹولز کے ذریعے لڑکی کی نازیبا تصاویر وائرل کر دیں۔ لڑکی کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان میرا چچا زاد بھائی اور شادی شدہ ہے۔ ملزم میرے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ 2,80,000 بھتہ وصول کرنے کے باوجود مزید کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، شادی سے انکار کرنا جرم بن گیا۔ چچا زاد بھائی نے طالبہ کی زندگی اجیرن کر دی۔ نوجوان نے اے آئی ٹولز کے ذریعے لڑکی کی نازیبا تصاویر وائرل کر دی۔ لڑکی کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم میرا چچا زاد بھائی اور شادی شدہ ہے۔ ملزم میرے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا۔ 2,80,000 بھتہ وصول کرنے کے باوجود مزید کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تمام اسکولوں کی عمارتوں کو چیک کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبہ بھر کے اسکولوں کی حالت زار بہتر بنانے کا حکم دے دیا۔ مظفر گڑھ ضلع کے 100 سے زائد اسکولوں کی حالت خراب، سب سے زیادہ 47 اسکول علی پور اور تحصیل جتوئی میں موجود ہیں۔ بچوں کی زندگیاں دو پر لگ گئیں۔ مظفر گڑھ ضلع بھر میں اسکولوں کی عمارتوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 4 اسکولوں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 بچے زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 20 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ روز قبل بھی مظفر گڑھ کے علاقے بسندے والی میں اسکول کی چھت گرنے سے 1 بچہ جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ علی پور اور تحصیل جتوئی میں 47 کے قریب اسکولوں کی حالت زار انتہائی خراب ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں۔ تمام اسکولوں کی حالت زار فوری بہتر بنائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ ملتان کا پیرا غائب روڈ رستہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑنے سے گاڑیاں کھٹارا اور حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرد و غبار اور گندگی کے باعث بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ سڑکوں پر سفر کرنا ملتانیوں کا مقدر بن گیا۔ بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پیرا غائب روڈ پر بھی سفر کرنا محال ہو گیا ہے۔ گہرے گڑھوں کے باعث حادثات معمول اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں سڑک پر گرد و غبار کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کو کئی مرتبہ ہم نے بلایا ہے، وہ دیکھ کے وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ادروائز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سارے تاجر پریشان ہیں، دکانیں جو ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کاروبار ہے نہیں۔ روڈ تھا اب سنگل ہو گیا، اور دیکھیں نا وہیں سے دونوں سائڈ سے چل رہی ہیں ٹریفک، کوئی تیز آتا ہے کوئی تیز ہلکا آ رہا ہے، بیچ میں لگ جاتے تو مسئلہ تو بننا ہے نا۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ گرد و غبار کے باعث تاجر دکانیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کئی بار اعلیٰ حکام کو شکایات درج کروائیں لیکن مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ روڈ کا تو برا حال پوچھے نا، روڈ کا کیا حال ہوا پڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا کیمرہ مین ہمارا دکھا سکے روڈ، یہ آگے میرے ساتھ چلے، کوئی 10 دکانیں آگے دکاندار چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ بیچارے کرایہ نہیں پھوڑ سکتے، کسٹمر نہیں آتا، بارش ہو جاتی ہے تو 1 ہفتے کے لیے لوگ ادھر آ نہیں سکتے۔ تو بہت خستہ ہے، واسا والے آتے ہیں اور کوئی نظام نہیں ہے روڈ کا، روڈ بالکل خستہ حالت ہے، 2.5 سال سے ہم بہت پریشان ہیں۔ شہریوں نے ملتان انتظامیہ سے پیرا غائب روڈ کی فوری تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین شہاب علی کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ دنیا پور میونسپل کمیٹی میں مبینہ مالی بے ضابطگیاں، میونسپل کمیٹی مالی بحران کا شکار ہو کر رہ گئی۔ عدم ادائیگی پر میپکو انتظامیہ نے بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا۔ دنیا پور میونسپل کمیٹی مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے باعث مالی بحران کا شکار۔ میپکو انتظامیہ نے 1 ہفتہ پہلے عدم ادائیگی پر میونسپل کمیٹی آفس، واٹر ورکرز سمیت تمام بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے، جس کی وجہ سے شہری میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر کا زیر زمین پانی کڑوا اور کھارا ہونے کی وجہ سے قابل استعمال نہیں۔ شہری واٹر فلٹر پلانٹ سے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ تو ہر ماہ 350 روپے پانی کا بل ادا کرتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میری خصوصی اپیل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ سے ہے کہ آپ ترقیاتی کاموں پہ آپ نے زور لگا رکھا ہے اور کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میڈم ہمارا خیال کیجئے، ہمارے زمین پانی کڑوا ہے، ہمیں پانی آج 8 دن ہو گئے ہماری بجلی کو منقطع ہوئے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں پانی نہیں ہے۔ آج فلٹر پلانٹ کے ہر بندے نے 60 روپے کی کین کر دی ہے، ہمارے یہاں کربلا کا پیش کیما ہو رہا ہے۔ اعلیٰ کام سے ہماری گزارش ہے، ہم کمیٹی کو 350 روپے بل دیتے ہیں ہر مہینے، اور ہر مہینے ہمارے بل دینے کے بعد بھی ہمیں پانی نہیں مل رہا۔ پانی بل نہ دیں تو ہمارا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اس میں بتا کیا کچھ ہو رہا ہے، 8-10 دن ہو گئے، ہم بہت پریشان ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ تحصیل انتظامیہ کے دفتر بھی گئے اور درخواست کی کہ بجلی کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ان کا جواب تھا کہ آپ جائیں، ابھی بجلی بحال ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔
जब हम उनसे कहते हैं कि हमारा कनेक्शन लगाया जाए, हमें बातों में ले तो लाश से काम लेते हैं और हमें भेज देते हैं। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारे, हालांकि कोई नहीं आता, झूठ तूफान बोलते हैं। खुदारा हमदर्दाना अपील है, हम पे रहम कीजिए, हम पे रहम कीजिए। शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज़ दुनियापुर। मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालतों के क़याम की शक थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान का PTI के लिए मसीहा बनना सियासी क़यामत की निशानी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलग अलग मुसव्विदे हैं। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इत्तिहादी हुकूमतों में मसाइल होते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरामीम के हवाले से वकला बरादरी से मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालतों के क़याम की शिक मौजूद थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ऐसे माइलस्टोन जो है वो छोड़ के जाते हैं कि जिसको पूरा शायद ही कोई आता हो। उन्होंने जो इत्तेहादी हुकूमत का एक तजर्बा और एक चीज़ छोड़ के गए हैं, हर कोई इस उम्मीद से है कि उस तरीके से इत्तेहादी हुकूमत चले, तो उसके लिए तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब की ज़रूरत होती है। लिहाजा आज भी वो प्रेसिडेंसी में बैठकर मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, इस इत्तेहादी जमात को, हुकूमत को चलाने के लिए पूरी कोशिश है। जहाँ तक आप लोगों के मसाइल है, मैं बिल्कुल समझता हूँ आपके मसाइल जो है वो हमसे बहुत ही कम है। हमारे जो मसाइल अगर आ जाएँ खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम देखें तो ज़्यादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ जो है प्रॉपर फोरम तक पहुंचाई जाएगी, सुनी जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मुल्तान मेरा दूसरा घर है। ज़िमनी इलेक्शन में वसीम की आवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। डेरा इस्माइल खान में भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियती पार्टी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा माइलस्टोन है। इन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हमारे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा चाहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2008 में सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी और हमने 18वीं तरमीम की, एक तरीक़ार से की और हमने जो है यूनिवर्सिटी उसको पास कराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी जाते देखें, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टास्क अपने सर लिए हुए रिफॉर्म्स के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी गए हैं। हमारी एक कमेटी बनी है, परसों भी वो मौलाना साहब के पास मौजूद थे और मौलाना साहब ने कहा कि अपोजिशन जमातों को और को भी एतवाद में लिया जाए, तो वो उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। अब ये सियासी क़यामत की निशानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, राउत साजिद अली, टिकट होल्डर मलक रिजवान हां, शाहिद रजा सिद्दीकी, PT सदर नसीम लाबर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। पंचकोर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मजदूरों का वाकया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 8 मजदूरों को फायरिंग का निशाना बनाया गया। फायरिंग के नतीजे में 7 मजदूर जाँ बहक और जबकि 1 जख्मी हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सलमान समीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल होने वाले बलूचिस्तान में नाखुशगवार वाक़ये में जो है वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 मजदूर जो हैं उनके ऊपर जो है वो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसमें से 7 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए और 1 जो है वो ज़ख्मी हुआ। मुल्तान की तहसील शुजाबाद से इन सारों का ताल्लुक़ था और उनमें से 4 की जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस वक्त शुजाबाद का एक बस्ती है चद्दड़, वहाँ पर लेकर आ रही है इस वक्त इंतज़ामिया और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इलाका मकीन भी मौजूद हैं और यहाँ पर मौज़रीन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कल एक नाखुशगवार वाक़या देखने में आया, आपके इलाके के 8 लोग जो थे वो जो हैं वो जान की बाजी आ रहा है और इस वक्त चद्दड़ के अंदर जो है वो 4 मजदूरों की डेड बॉडी जो है वो लाई जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, कुछ लोग गए हुए थे, 8 लोग बस्ती चद्दड़ से मजदूरी के लिए, तो पंजगूर के कुछ दहशतगर्दों ने उनको कल बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसमें से 1 ज़ख्मी हुआ और 7 वहीं पे जान की बाजी हार गए। तो ये अब पंजगूर वालों ने या बलूचिस्तान के दहशतगर्दों ने एक बहुत ही गलत इक़्तिदाम किया है और पहले भी वो कर रहे हैं। तो ये पंजाब वालों को ये जो हरकतें या ये जो मारना पीटना, दहशतगर्दी, शहादत, तो ये बहुत गलत है, वो उन्होंने वो ज़्यादती की है।
हाँ जी, ज्यादती की है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 लोगों का नाम जो है वो साजिद, खालिद, फयाज और सलमान है, जबकि फयाज जो है उनके बेटे सलमान जो है वो एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के 2 अफराद भी इसी चद्दर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी उन जहाँ बहाक होने वाले अफराद में जो है वो शामिल है। मज़ीद मेरे साथ मौजूदीन खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि इनके घर में कैसा सोगवार चल रहा माहौल है, और उसके बाद ये जो एक ही घर के 2 अफराद जो इस वक्त जहाँ बहाक हुए हैं, जान की बाजी हारे हैं, क्या समझते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई साहब, घर के अलावा पूरा इलाका का सोगवार है, बड़े दुख की बात है, बड़ी तकलीफ दे बात है। हमें पंजाबी होने का पहले भी मारे हैं, अब भी मारे हैं। वो लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग उन्हें इज्जत देते हैं, भेड़ बकरियाँ लेके आते हैं, हर बंदा उनको इज्जत है, लेकिन हमें ये सिला देता हमारे बंदे को मार दिया जाता है। देखिए जी, इस वक्त इलाके की सोग जो फिजा है वो काफ़ी सोगवार नज़र आ रही है और लोगों का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो यहाँ पर जनाजा गाह पर मौजूद है और अभी तक जो है डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया कि निश्तर हस्पताल से जो है डेड बॉडीज़ जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं, बजरिया मोटरवे जो है वो उन्हें लाया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग जो है वो डेड बॉडीज़ का इंतजार कर रहे हैं और जो ही डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुंचेंगी तो उनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं उनकी भी आमद जो है वो मुतवक्के है और जब जनाजा गाह के अंदर डेड बॉडीज़ लाई जाएंगी तो एक जमे गफीर देखने को मिलेगा और आवाम जो है वो इस वक्त बड़े गम के अंदर खड़ी है यहाँ पर कि उनके इलाके के जो लोग हैं उनको बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया था। जी सलमान ज़मीन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में डीपीओ और रिजवान उमर गोंदल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इनका बताता है, इनका ये प्लान चेंज हो जाता है। सो दे चूज कि मज़ारी बाग हमें सूट करता है बिकॉज ये कच्चे की साइड पे है और मज़ारी बाग से पिकट जो है वो सॉफ्ट टारगेट हमारे नजर आ रहा है, क्योंकि रात की जो हमने मूवमेंट देखी है उसके हिसाब से यहाँ पे पुलिस का बैकअप उतना शायद स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद ये 5 दिन का वेट करते हैं, नेक्स्ट लाइन। और ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट को भी हमने मेंशन किया, ये अब रात आ जाती है 31 जुलाई और 1 अगस्त की। एग्जैक्ट एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो है 11:45 पर ये अटैक करते हैं। ये 6 बजे के करीब इकट्ठे होते हैं मज़ारी बाग में, सेल आईडीज उसके मुताबिक ये सारे लोग उधर बैठते हैं। दे वेट फॉर द पुलिस डिप्लॉयमेंट होने के बाद 11:45 पे ये बाद यहाँ से निकलते हैं और ये पिकट पे अटैक करते हैं। मोर्चे के अंदर ये घुस जाते हैं और मोर्चे के अंदर से फायरिंग करके पहले 3 कांस्टेबल्स को शहीद करते हैं। बाहर निकल के दोबारा बेईमाना तरीके से उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। उसके बाद पुलिस की जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं और वसला लेके इसी रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। 12:10 पे जो छल्लू बुखरानी है, जो कि इसका आप कह लें कि सारा मेन प्लानर है अलॉन्ग विद तनवीर इंदड़, क्योंकि ये सारा ग्रुप इकट्ठा भी हुआ है, वो मार्केट में एक बंदे को कॉल करते हैं 12:10 पे 1 अगस्त को, यानी इंसिडेंट के 25 मिनट के बाद, टू फाइंड आउट कि क्या पुलिस का बैकअप पीछे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो बंदा उनके लिए एक ओपी के तौर पे काम करता है। वो बंदा आइडेंटिफाई हो चुका है, वी आर वर्किंग ऑन हिम बिकॉज ही ऑल्सो फैसिलिटेटेड दीज डिक्वायर्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर। इंशाल्लाह ताला उसको भी कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब ये जब इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद ये जो कादर बख्श दस्ती है जो आज के इंसिडेंट में मारा गया है, वो तो अपनी पहले वाली जो सीमा है उसको तोड़ देता है और 12 आईमी यूज करता है, 12 आईमीज को यूज करता है पुलिस को डिसीव करने के लिए। कहीं कल कलां को टेक्निकल डाटा से मैं पकड़ाने जाऊं। जो दिलवश दस्ती है वो तकरीबन 10 आईमीज यूज करता है। हमारे पास वो आईमी नंबर भी हैं और हमारे पास इनके वो सेल नंबर भी हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें ट्रेस आउट हुई। जो छल्लो बिकरानी है वो पोस्ट इंसिडेंट कि मैं कहीं और पॉइंट आउट ना हो जाऊं, वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं करता इन दोनों के साथ राब्ते के लिए। ही यूजेस नंबर ऑफ अनदर बिखरानी जो उसका रिलेटिव है, उसके नंबर से इनके साथ राब्ते में रहता है। ये जो कादर बख्श दस्ती है ये भाग जाता है, उसके बाद रिपोर्ट हो जाता है अपने वालिद का फोन सेट लेके। तो ये जब टेक्निकल डाटा से हमने एनालाइज किया चीज़ों को, तो हमें पूरा जो गैंग था, जो एक्शन पार्टी थी उस दिन की, जो कि खुद आए लेस विद वेपन और हमारे कांस्टेबल को शहीद किया, वो हमें पता चल जाता है। इसमें 3 ऐसे लोग हैं जो भी अननोन हैं, जिनका टेक्निकल डाटा हमारे पास आ चुका है, बट वो हम मुख्तलिफ एजेंसी से हेल्प सीख कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए।
ये उस दिन के इंसिडेंट की डिटेल्स हैं कि 6 बजे ये पहले पहुंचते हैं और ये सारे लोग उस पर इन्वॉल्व होते हैं। 11:45 पे अटैक हो जाता है, 3 पुलिस ऑफिशियल्स को ये शहीद कर देते हैं। कल रात हमें जब इनके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया तो कल रात को हमें तकरीबन 9:30 बजे पता चला कि इन्हीं बागात की तरफ डिकॉइट्स की मूवमेंट है। हम पूरी रात लगे रहे, हमने जो अपने पुलिस के मुआवनीन पुलिस हैं उनको भी यूज़ किया, बट सम हाउ हमें इनकी सेल आईडीज थोड़ी ट्रिकी हो गई रात के टाइम। हम रहीम यार खान में गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का दुआ चौक में खिताब। मेजबान सिटी सदर पीपल्स पार्टी राजा सोलंकी भी स्टेज पर मौजूद। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जियालों की शिरकत। गवर्नर का कहना था कि हमारी अफवाज और KPK के लोगों ने वतन के लिए कुर्बानियां दी, हमने मिलकर इस मुल्क को आबाद करना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आवाम के मसाइल हल करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। हर गरीब के घर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड दिया जाएगा। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुंतखब ओहदेदारान के इंतखाबात के नताइज बताए गए। हाफिज उमैर सईद प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स बिला मुकाबला मुंतखब। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने ओहदेदारान में शील्ड्स तकसीम की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, आज चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से मकामी होटल में एनुअल जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। बात करते चले हैं तो 9 मुंतखब ओहदेदारान के इलेक्शन के नताइज भी जो है वो आज बताए गए हैं। हाफिज उमैर सईद जो है वो बिला मुकाबला प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो साबका सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री शेख फैसल सईद मौजूद हैं। भाईजान, कैसा टेन्योर गुजरा आपका? आपके दौर में जो है वो FBR की जानिब से टैक्सों की भरमार भी हुई, हड़तालें भी हुई, एहतजाज भी हुए, IPPs के साथ मुआहदे भी हुए। कैसा टेन्योर गुजरा, इस सवाल से क्या कहेंगे? मेरे टेन्योर के दौरान तकरीबन काफ़ी सारे प्रॉब्लम आए, जिसके अंदर IPPs का प्रॉब्लम आया और इसके अलावा जितनी कोविड का भी टेन्योर इसके अंदर ही गुजरा, जिसके अंदर मुख्तलिफ ताजरों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आई। तो हमने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की और हर फोरम के ऊपर जो है वो अपने ताजरों की, अपने सनतकारों की आवाज़ को पहुँचाया। मुल्तान के ताजरों और सनतकारों के लिए चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमें एक छोटे ताजरों के लिए और मीडियम ताजरों के लिए हमें एक इंडस्ट्रियल स्टेट दी जाए। और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, जो आने वाली टीम है, कि वो हमारी इस काविश को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद रखता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो हमारी बातचीत हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर मुल्तान के अंदर इंशाल्लाह जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो कायम कर दी जाएगी छोटे ताजरों के लिए और छोटे सनतकारों के लिए। जी, इस वक्त जो है वो मौजूदा सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री हाफिज उमैर सईद वो भी हमारे हमने मौजूद हैं। भाईजान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से अमली इक़दाम किए जाएँ जिससे मुल्क की माशत का पहिया जो है वो रेड़ सके? शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी ताजर बरादरी का, जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री का सदर मुंतखब किया। हमारा यही होगा कि जो टीम पहले गुजरी है, जिन्होंने इतना काम किया, हम उस काम को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला और मुल्तान में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए और जो बाकी इक़दाम इन्होंने किए उसको इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे, जिससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा इस वक्त जो है वो हम मकामी होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर की जानिब से जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। यहाँ पर जो है वो चैम्बर की नई बॉडी का भी जो है वो उसके नताइज भी, इलेक्शन के नताइज भी बताए गए हैं। शुक्रिया फराज रमजान। अब बात करेंगे 3.5 लाख किसानों के कार्ड बन चुके। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार साहू की दौरे मुल्तान के दौरान गुफ्तगू कहते हैं किसान कार्ड से गंदम की फसल काश्त करने में मदद मिलेगी। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार साहू मुल्तान पहुंच गए, किसान कार्ड सेंटर का दौरा किया और कार्ड तकसीम का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार साहू ने रोही को बताया कि किसान पैकेज पंजाब हुकूमत का तारीखी इकदाम है। 10 लाख किसान अब तक किसान कार्ड अप्लाई कर चुके हैं। 3.5 लाख किसान कार्ड बन चुके हैं। काश्तकारों को फी एकड़ 30,000 रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के तारीखी किसान पैकेज के तहत वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की तकसीम का अमल इस वक्त सूबे भर में जारी है। आज तक तकरीबन पंजाब में 10 लाख किसानों ने किसान कार्ड के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख के करीब किसान कार्ड बन के इस वक्त डिस्पैच हो चुके हैं और इन मराकज़ में तकसीम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि किसान कार्ड से गंदम की फसल काश्त करने में मदद मिलेगी। पहले मरहले में ये कार्ड सिर्फ उन जिम्मेदारों को दिए जा रहे हैं जो कम से कम 1 एकड़
اور زیادہ سے زیادہ 12.5 एकड़ تک ज़मीन کے मालिक हैं। जो काश्तकार गैर मालिक अराजी हैं, जो ठेके पे काश्त करते हैं, उनके लिए स्कीम को दूसरे मरहले में उनको कंसीडर किया जाएगा। ये इस रबी के लिए पहले मरहले में जो ये स्कीम है, ये सिर्फ मालिक अराजी छोटे काश्तकारों के लिए। सेक्रेटरी ज़राअत का मजीद कहना था कि अगले मराइल में उन काश्तकारों को भी स्कीम में शामिल किया जाएगा जिनके पास अपनी अराजी नहीं होगी। कैमरामैन रेडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में क्लाइमेट चेंज बारे आगाही सेशन माहिरीन ने सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों को मौसमियाती तब्दीलियों से जन्म लेने वाले मसाइल और उनके हल बारे बताया। मुल्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम क्लाइमेट चेंज के बारे में सेशन का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल और इनके हल के बारे में बताया गया। जनूबी पंजाब भर से 26 सहाफ़ी सेशन में शरीक हुए। हम जो मुल्क में क्लाइमेट एक्शन की जो ज़रूरत है उसको ओवरसाइट किस तरह कर सकते हैं, ताकि जो क्लाइमेट गवर्नेंस के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको साफ और शफाफ किस तरह बनाया जा सकता है, क्लाइमेट फाइनेंस की यूटिलाइजेशन में ओवरसाइट को किस तरह इंश्योर किया जा सकता है। तो इसके लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है क्लाइमेट चेंज का, वो है क्या। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के डायरेक्टर काशिफ अली, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नसरीन मेमन और पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद शफीक ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से शुरा को आगाह किया। जो इलाका पहले गर्म है वहां पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे 1.3 नहीं बढ़ा, वहां पे कई दर्जे ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जो ठंडी जगह हैं उन पे एन मुमकिन है 0.03% बढ़ा। तो एवरेज किया है हमने, तो तबाही उसमें नजर नहीं आती। 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड नजर आता है, तबाही नजर नहीं आती। लेकिन जगहों जगहों पे जाके हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तबाही बहुत खौफनाक है। शुरा का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां बहुत मुफीद हैं। न सिर्फ मालूमात में इजाफा होता है बल्कि अच्छी रिपोर्टिंग की खुसूसियात में निखार आता है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। इतवार के रोज शहर ओलिया में खेल के मैदान आबाद। छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए बच्चों और नौजवानों ने मैदानों का रुख कर लिया। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश लग गया। छुट्टी के रोज मुल्तान में खेल के मैदान आबाद हो गए। बच्चे और नौजवान मुख्तलिफ ग्राउंड्स में पहुंच गए। रेलवे ग्राउंड में भी बच्चे क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। कहते हैं पूरा हफ्ता पढ़ाई करते हैं और आज का दिन खेलने को मिलता है। बस मुझे क्रिकेट का शौक है। बस कजन ने कहा था कि हफ्ते वाले दिन भाई क्रिकेट खेल, एतवार को क्रिकेट खेलने आनी है। मैं इसलिए क्रिकेट खेलने आता हूँ। जुम्मे को मेरी छुट्टी होती है, जुम्मे को भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ। नौजवानों का मजीद कहना था कि छुट्टी का दिन खेल के मैदान में ही गुजरता है। खेल तफरीह के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। एतवार की छुट्टी क्रिकेट खेलकर गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे पहले तो एतवार का सबसे पहले खुशी का दिन होता है कि यहाँ खेलने को हमें बहुत कुछ मिलता है। मैच खेलने आते हैं और सारा दिन यहाँ ग्राउंड में गुजर जाता है, फिर घर शाम को घर जाता है। रेलवे ग्राउंड में नौजवानों ने क्रिकेट खेलकर खूब एंजॉय किया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ रोना बिलाल, रोही, मुल्तान।